Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are going to solve exercise 4.3 question number 4, where we will find the second polynomial when given the highest common factor, LCM, and one of the polynomials. Let's break it down step by step. Start reading the question statement carefully and find out what they given us in the question statement. The highest common factor of the two polynomial is y minus 7. Means in this question they given us highest common factor is equal to y minus 7, and their LCM is this expression. Write the LCM they given us y cube minus 10y square plus 11y plus 70. This is if one of the polynomial is y square minus 5y minus 14, means px one polynomial. Suppose it we have a one polynomial is px y square minus 5y minus 14. Find the other. Now we have to find the other polynomial, which is qx. At this point we are going to use the formula provided at page number 76, relationship between LCM and the highest common factor. The relationship between the LCM and the highest common factor is LCM multiply highest common factor is equal to the first polynomial multiplied with the second polynomial. We are going to use this formula and find out the second polynomial. LCM value they given us, highest common factor value they given us in the question statement. Also they given us a px value in the question statement and says that we need to find the value of qx. Now we are going to write the relationship between the two polynomials. Px multiply qx is equal to LCM multiply highest common factor. वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू एस. हमने सिर्फ क्यू एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. पी एक्स जो हमारे पास इस टर्म में लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे फॉर मेकिंग द फार्मूला एल सी एम मल्टीप्लाई हाइएस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइडेड बाय पी एक्स. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट. एल सी एम वैल्यू दे गिवन इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70. Multiply highest common factor value they given us y minus 7 divided by px value they given us the constant statement y square minus 5y minus 14. This question is very easy question. Just what you have to do, find out the given thing provided in the question statement. These all things are given in the provided in the question statement. Then write the relationship between the LCM and highest common factor. Substitute the values provided in the question statement. After substituting the value, find the required result. How we are going to find the required result? Now we have to do the cutting. हमने न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर की कटिंग करनी है. इस वाली फ्रैक्शनल फॉर्म की इस वाली फ्रैक्शनल फॉर्म के साथ कटिंग करेंगे. कैसे कटिंग करेंगे? मैनी मेथड्स. या तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें न्यूमिनेटर की भी और डिनोमिनेटर की, और जब आपकी प्रोडक्ट की फॉर्म बन जाएगी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग हो जाएगी. अनदर मेथड ये क्या होता है कि आप इस न्यूमिनेटर को ले लें, आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर रख लें क्योंकि ये हमारा डिवाइडेंट है. हम इसको इस तरह रख लेंगे वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, एंड दिस इज़ आर डिवाइज़र. डिवाइज़र को आप बाहर रखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, और इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके इसकी डिवीजन कैलकुलेट कर लें. लॉन्ग डिवीजन का मेथड रिपीट करती हूँ कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें क्या करना होता है कि हमेशा सिर्फ हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. डिवाइज़र और डिवाइडेंट की फर्स्ट टर्म को देखना होता है. डिवाइज़र की देखते हैं कि पहली फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारी डिवाइडेंट की पहली फर्स्ट टर्म ख़त्म हो जाए. वाई स्क्वायर को हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट वाई क्यूब. तो हम पूरे डिवाइज़र को y से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेंट के नीचे लिख देते हैं. वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई वी गेट वाई क्यूब माइनस 5y मल्टीप्लाई वाई वी गेट माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14 मल्टीप्लाई वाई वी गेट माइनस 14y. डिवीजन मेथड में हमारे साइन चेंज हो जाते हैं. एज यू नॉट दैट पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव, ये नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव, एंड वी ऑलवेज यूज़ द चेंज साइन. प्लस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारा ख़त्म हो जाता है. सेकेंड माइनस 10 प्लस 5. नो आपने सेकंड साइन को देखना है. माइनस 10 प्लस 5 वी गेट माइनस 5y स्क्वायर बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है. प्लस 10 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 14 वी गेट प्लस 25y एंड प्लस 70 रिमेन सेम. नाउ एंड अगेन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट फर्स्ट टर्म, और हमने इसी डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म को देखना है कि डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिवाइडेंट की फर्स्ट टर्म खत्म हो जाए. वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विद माइनस 5 वी गेट माइनस 5y स्क्वायर. तो होल टर्म को माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेंट के नीचे लिख देंगे. वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 5 वी गेट माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5y मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 5y मल्टीप्लाई विद माइनस 5 वी गेट प्लस 25y.
माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बिकम पॉजिटिव एंड 5 मल्टीप्लाई 5 25, माइनस मल्टीप्लाई माइनस पॉजिटिव एंड 14 मल्टीप्लाई 5 बिकम 70, पॉजिटिव 70. Now change the sign, negative change into positive, positive change into negative, positive change into negative. Minus 5y square plus 5y square cut, we get 0. 25y minus 25y cut 0, plus 70 minus 70 cut 0. मीन्स जब हमने इसको डिवीजन मेथड किया तो ये पूरा y माइनस 5 को डिवाइड करता है. आप इस फ्रैक्शनल फॉर्म को कट के इस करके ऊपर लिख सकते हैं y माइनस 5, जैसे हम टेबल्स की कटिंग करते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या बचा है, QX इज इक्वल टू आफ्टर द कटिंग y माइनस 5 y माइनस 7. नाउ डू द मल्टीप्लीकेशन. आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई y बिकम माइनस 5y. हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमें सेकंड पॉलिनोमियल का कंप्लीट एक्सप्रेशन मिल जाए. y मल्टीप्लाई y स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई y 5y. अब पूरी टर्म को माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई माइनस 7 बिकम माइनस 7y, माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 7 बिकम प्लस 35, it become y square, minus 5 minus 7 become minus 12y plus 35, and this is our required second polynomial expression. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.